very good morning to all. So today is your geography class. Here I am going to explain about the structure of the atmosphere. So today's topic, that is structure of the atmosphere. In the previous video I have explained about the atmosphere and composition of the gases in atmosphere. So the atmosphere is a blanket of air that's surrounding our earth. Clear? What is the atmosphere? Atmosphere is a layer of air surrounding our earth. You know very well, the earth is only planet where life is possible because of three components. First one is land, second one is a water, third one is a atmosphere. So atmosphere is a very important to survival because there's three components in which the atmosphere is here. Clear? Next, that is composition of gases. 78% contains nitrogen. The chemical formula of nitrogen, that is N2. 21% contains oxygen. The chemical formula of oxygen, that is O2. 1% contains other gases in which carbon dioxide, helium, argon, ozone, hydrogen and other gases. The actual percent of oxygen, that is 20.9%. Clear? The next that is our topic, structure of the atmosphere. The atmosphere is divided into 5 layers. Okay, we will start from the Earth's surface. Number 1 is troposphere, number 2 is stratosphere, number 3 is mesosphere, number 4 is thermosphere, number 5 is exosphere. Clear? We will discuss about all the layers one by one. So, first one is troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. ये जो आपकी layer है बहुत important है. Its our height is 12 kilometer. आपकी बुक में 15 kilometer दी होगी. It varies, but we can say its height 0 to 15 kilometer. In this layer, all weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occurs. इस लेयर में क्या होता है आपका, जो आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, आपका रेनफॉल होता है, आपका फॉग होता है, ऑल द वेदर फिनोमिनास आर ऑकर. क्लियर? आपके एरोप्लेन्स आर फ्लाई, आपका जो माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस से हम देख रहे हैं. द सेकेंड लेयर, दैट इज अवर upper stratosphere. Above the troposphere, the second layer, that is stratosphere, it extends from the height of 50 kilometer. 0 to 15, that is troposphere. 15 to 80, that is stratosphere. This layer is free from clouds and associated weather phenomena, which makes it most ideal for flying aeroplanes. जबकि एरोप्लेन आपके इसमें फ्लाई होते हैं, दोनों लेयर्स में फ्लाई होते हैं. इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. स्ट्रेटोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. व्हाई? बिकॉज द ओजोन लेयर आर फाउंड इन दिस लेयर. व्हाट इज द वर्क ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज वेरी हार्मफुल रेज. अगर हमारे ह्यूमन की बॉडी पे पड़ती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, देन आपको स्किन कैंसर तक डिसीज हो सकती है. ओजोन लेयर क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वापस स्पेस में ट्रांसमिट कर देती है. दैट्स व्हाई ओजोन लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट मूव करते हैं. दैट थर्ड लेयर, दैट इज अवर मेसोस्फीयर. The third layer, that is our atmosphere, is called a mesosphere. It lies above the stratosphere. Stratosphere की जो ऊपर लाई करती है, that is our mesosphere. It extends from the height of 80 kilometer. 50 to 80 kilometer में आपकी लाई करती है. What is the work of mesosphere? Meteoroids burn up in this layer on the entering from space.
आपको पता है आपकी अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और आपकी राउंड भी लगाती है सन के। व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर सो मेनी मेट्रॉइड्स, सो मेनी एस्ट्रॉइड्स, जो क्या कर रहे हैं आपके अर्थ के साथ साथ राउंड लगा रहे हैं। बहुत सारे मेट्रॉइड्स क्या करते हैं अर्थ पे कभी कभी आने की वो राउंड लगाते रहते हैं, दैट्स वाई एंटर कर सकते हैं। तो मीजोस्फीयर आने में क्या होता है, मीजोस्फीयर में इतनी हीट है कि वो सारे जो मेट्रॉइड्स हैं वो वन अप हो जाते हैं, ओके, जिससे अर्थ पे नहीं आ पाते। नेक्स्ट दैट इज अ थर्मोस्फीयर। Thermosphere is also called a ionosphere. In thermosphere, temperatures rises very rapidly with increasing height. थर्मोस्फीयर में आने पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करने लगता है, आपका बढ़ने लगता है। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। आपकी थर्मोस्फीयर में ही आइनोस्फीयर भी इंक्लूडेड है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये क्या करती है, रेडियो जो ट्रांसमिशन है, रेडियो फॉर द कम्युनिकेशन, जो आपकी ये हेल्प करती है फॉर द कम्युनिकेशन। इन दिस लेयर क्या होता है, इस लेयर में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम विद द वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एंड ऑल दैट। जब हम कॉल करते हैं, हम कोई नंबर डायल करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, दीज आर द कोड। जब हम कोड करते हैं इस लेयर में, थर्मोस्फीयर में क्या होता है, वो जो आपकी कोडिंग नंबर्स हैं, वो सिग्नल्स हैं, एक्टिवेट होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, एंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं अर्थ में दोबारा, जिसको हम कॉल करते हैं उसको कॉल हमें पहुंच जाती है। तो दिस लेयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेशन, okay, in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to earth by this layer. Next, that is last layer of the atmosphere, that is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin layer. Light gases like helium, like hydrogen float into space from there. What is happening in this layer में क्या होता है, आपकी जो लाइट गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, फ्लोट करती हैं, इट मीन्स आपकी स्विम करती हैं, तैरती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हीट है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से सारी गैसेस क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट, जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, जो आपकी जो साइंटिस्ट हैं हमारे क्या करते हैं, सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, तो वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करती है, रोटेट करती रहती हैं। तो सैटेलाइट जो फाउंड होती है, सैटेलाइट्स आर फाउंड इन एक्सोस्फीयर, ओके। अभी आप सभी को क्लियर हो गया, एक बार इट इज क्लियर टू ऑल। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, the atmosphere is divided into 5 layers. First one is a troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, okay.